Good morning, students. So today we are going to start from page number 43 of economics. Before this, we had seen about the loan activities of the bank. We had seen that how the bank take money from the pupil and keep it secure. And for that, they used to give an interest rate. And 15% money was kept with the bank, but other money is distributed as a loan to other people who need it. Okay. In exchange of that loan, they ask a little more or little bigger amount in the interest rate. Okay, and this difference between the loan money was can be taken as a income of the bank. And bank plays a mediated role between the borrowers and the person who is having surplus fund. But today we are going to see the different aspect of it, and in this we are going to see how the credit can play two roles. Before I had given this, then in this we have seen the two different situation of the credit. In one, we can see the positive role of that. An example is Mr. Salim. He had taken loan from the bank, and he had we can say he had a betterment with this. But with Sapna, the problem was totally different, and Sapna lost her what we can say land piece also to take her out of the debt trap. So we can see the credit can have two situations, positive as well as negative. If we see positiveness, then we can say the positivity comes with the formal sector, that is bank or some legal system. But informal, if we are taking loan from informal system, then ultimately we can see that most of the people drawn in that, and they have to sell their asset, they are in the debt trap, and that was the biggest problem. So now today we are going to see another system, that is term of credit. Okay, we need the loan, but can the bank lend loan without any documentation, without any proofs, without any knowing about the person? It's not that. Because if somebody is taking loan, he have to go through with at least we can say 6 type of documents, or 6 type of we can say credit terms. Okay, the terms are, we have to see here. So here is an example of Megha, and let me read the paragraph first for you, and then we will go through the explanation of it. Okay. So every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of principal. Then in the addition, lender may demand collateral, that is security, against the loan. The collateral is an asset that owners such as the land, building, vehicle, then livestock, deposit in the bank, then and use this as a guarantee to the lender until the loan is paid. Then if the borrower fails to repay the loan, the lender have the right to sell the collateral property such as the land title, then deposit with the bank and livestock, or some common example of collateral used for borrowing. So the interest rate, okay, collateral and documentation requirement and the mode of payment to get the compromise is called term of credit. The term of credit varies subsequently from one credit arrangement to another. Then they may vary depending on the nature of the lending and the borrowers or borrower. The next sections will provide example for varying the terms of the credit in different
क्रेडिट अरेंजमेंट। सो टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसे देखने जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो कभी भी हम किसी से उधार लेने जाते हैं, उधार लेते हैं, तो हमें कोई चीज सिक्योरिटी के रूप में या गिरवी के रूप में रखवानी पड़ती है। तो जब हम गिरवी की बात करते हैं तो हमें जो भी हम पैसा भरते हैं उसके साथ हम ब्याज भी भरते हैं, देखो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भरते हैं, तो वो कोलेटरल वाली चीज हम उठा लेते हैं, वापस हमें मिलती है। इस कोलेटरल सिस्टम में अगर देखें तो कई सारी गिरवी वाले में बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं, जेवर होते हैं, बिल्डिंगें होती है, गाड़ियां होती है, यानी कि जीव जैसे भैंस और गाय और जिनके पास बहुत बड़े पैमाने में उनकी संख्या होती है, और या फिर बैंक में डिपॉजिट मनी है वो होती है। इसके अलावा आपने ये भी देख सकते हैं कि कोई एग्रीकल्चर फार्मर है, उसने अपना जो है किसी कोल्ड हाउस में, गवर्नमेंट कोल्ड हाउस में अपनी जो फसल है उसको जमा करके रखा है, वहां से टिकट लिया है, वो टिकट भी बैंक में या कहीं पर रख सकते हैं कि भाई मैंने इतने करोड़ का माल जो है रख रखा है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए, ये टिकट आपके पास रहेगा और इसके एवज में मुझे लोन चाहिए, क्योंकि वो टिकट के बिना वो सामान उठा नहीं सकता। तो ये जो सेटलमेंट्स है वो इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ मेघना की कहानी हम देखने जा रहे हैं। इसमें मेन चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और अंडरलाइन कर लेना, उससे मैं जैसे बोलती जा रही हूँ। मेघना ने लोन लिया, उसका प्रिंसिपल रेट था 5 लाख, अंडरलाइन करें, पहले होता है प्रिंसिपल रेट क्या हमें क्या करना, किसके लिए लेना है। देन वो अपना घर खरीदना चाहती थी, उसके बाद अगर हम देखें तो एनुअल इंटरेस्ट रेट था, प्रति वर्ष उसको कितना उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट उसका 12% था। देन हम देखें तो कितने समय के लिए उसने लिया, तो 10 साल तक के लिए लिया, और वो पेमेंट कब कब करेगी, मंथली करेगी, इंस्टॉलमेंट में करेगी, कैसे करेगी, ये एक और सिस्टम होता है जो कि आपका मोड ऑफ रीपेमेंट। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें तो जो डॉक्यूमेंट्स उसने जो रखवाए हैं, किस चीज के डॉक्यूमेंट्स, घर के डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए उसने, जमीन के रखवा दिए, गाड़ी के रखवाए, वो जो चीज है वो डॉक्यूमेंट्स जो है जो भी उसने गिरवी रखी वो है। इसके अलावा सैलरी रिकॉर्ड होता है, EMI जिनके कटते हैं उनके सैलरी रिकॉर्ड्स को भी क्या करते हैं, रखा जाता है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो जो कोलेटरल जो पेपर है वो अवेलेबल करना होता है जिसको लोन लेना होता है। अल्टीमेटली हम देखें तो मेघना की स्टोरी के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि टर्म ऑफ क्रेडिट 6 टाइप के होते हैं। पहला आपका जैसे आ रहा है लोन अमाउंट है, ड्यूरेशन ऑफ लोन है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इंटरेस्ट रेट है, मोड ऑफ रिपेमेंट है और कोलेटरल है। नीचे वापस उसी चीज को रिपीट किया गया है। ये सारी चीज जो है वो आपके टर्म ऑफ क्रेडिट कहलाती है। कई बार आता है व्हाट आर द टर्म ऑफ क्रेडिट, सिर्फ नाम लिख के मत आना, पूरा एक्सप्लेन करके आना। अब हम अलग अलग प्रकार के क्रेडिट्स और उनके अरेंजमेंट्स को देखने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स में अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है और इन नामों में आपको एक एक एग्जाम्पल दिखेगा। अगर हम देखें तो श्यामल टेल्स, श्यामल की कहानी है, दूसरी कहानी अरुण की है और बाद में राम माने हैं। इन सब ने अलग अलग तरीके से क्या कर रखा है, अपने पैसे लिए, किसी ने मनी लेंडर से लिए हैं, किसी ने अपने बड़े फार्मर से लिए हैं, किसी ने बैंक से लिए हैं। इन सब के अलावा जो मेन यहाँ पर क्या पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो मेन जो चीज है वो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप पढ़ ले, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। बस आपको नाम याद रखना है, कहाँ से लोन लिया और कौन जो है पॉजिटिविटी में गया और कौन जो है नेगेटिविटी में गिरा, ये ध्यान रखना। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। आखिर कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है? आई विल इन नटशेल आई विल टेल यू अबाउट इट। किसानों का एक कोऑपरेटिव सेक्टर बनाया जाता है, लेकिन उनको आपस में मिलाया जाता है।
ये सारे किसान जो है एक साथ अपने पैसे कलेक्ट करने लगते हैं। इनमें कई बड़े बड़े गांव भी हो सकते हैं, छोटे गांव भी हो सकते हैं, करीब 50 लोग भी हो सकते हैं और करीब 2300 लोग भी इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं। ये लोग जो है अपना पैसा इकट्ठा साझा करते हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है वो उसे दे दिया जाता है। जब उसे दिया जाता है तो क्या किया जा सकता है, वो उसे इस्तेमाल कर सकता है अपने आगे काम में। फिर जब उसका काम हो जाएगा वो उसे डिपॉजिट करेगा जहाँ पर बैंक नहीं है या जहाँ पे किसानों के पास अपना कॉरिडोर सिस्टम नहीं है या वो कागजी कार्रवाई नहीं कर सकते, वहां के लिए बेहद अच्छा सिस्टम है। Now, so let me read it for you. Beside the bank, the other major source of cheap credit in the rural area are the cooperative society or cooperatives. The member of the cooperative pool matlab group, their resources for cooperation in a certain area. There are several types of cooperative possible such as the farmer cooperative, weavers cooperative, cooperative institutional worker cooperatives. एक तरह से यूनियन कह सकते हैं। ओके, देन कृषक cooperative function in the village not very far away from the सोनपुर। अब हम सोनपुर की बात करें तो सोनपुर में एक जगह के लिए कि वहां पर जो कृषक कोऑपरेटिव थी वो सोनपुर के पास ही थी, अतः वहां पर अगर it has 2300 farmers as a member. It accepts deposits from its member. With these deposits as a partner, the cooperative has obtained a large loan from the bank. जब इन्होंने काफी अच्छे पैमाने में जब पैसा जमा कर लिया तो उसे बैंक में जमा किया, और जब बैंक में जमा किया तो उसके एवज में और बड़ा लोन इन्होंने क्या कर लिया, ले लिया। Once these loans are repaid, other round of the lending can be take place. एक बार जो ये दिया हुआ लोन है वो फुलफिल कर दिया बैंक को, तो वापस और दूसरा लोन उठा सकते हैं। किसान cooperative provide loan for the purchase of the agriculture implements, loan for the cultivation, agriculture trade, fishery loans, loan for the construction of the house, and for the variety of other expenses. ये लोन किसी भी तरह से किसान यूज कर सकता है, चाहे वो अपनी चीजों को खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर की चीजों को खरीदने के लिए कर सकता है, चाहे वो खेती करने के लिए खरीद सकता है, एग्रीकल्चर का जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए कर सकता है, अपनी फार्मिंग में मिक्स फार्मिंग पैटर्न जैसे फिशरीज है, डेयरी है, इनको डेवलप करने के लिए कर सकता है, घर बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। सो आज के लिए यहाँ तक काफी है और मैंने आपको कुछ नोटिस दिया, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये स्टोरीज पढ़ ली क्योंकि कई बार इनके नाम से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंड टू हर, हाउ ही मेड इट, देन रामा's प्रॉब्लम, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।